Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am again here for presenting a lecture about dynamic compaction and soil stabilization, Unit 5, Geotechnology, 6th semester. So this is my lecture number 6. I already made 5 lectures till now about this unit. And unit 4 also you can refer from my previous lectures. So before starting, I will just go through with soil stabilization, afterwards dynamic compaction process. This is a theoretical portion, and this whole unit contains theory only. Uh, in This is unit number 5, and the name of unit is soil compaction. Okay, so mostly the theory question will ask in the exams, and 10 or 20 number questions are very important. So I will start with the soil stabilization first. Okay, as I already discussed about soil stabilization in my previous lecture. So with the help of this PDF, we can also explain some more terms and explore more content. So I just repeating this topic by the use of some different figures. Okay, so you can just made your short notes or draw the figures, because this is important ones. Okay, so what is soil stabilization? As I already told you, it is a method जिसमें आप soil की strength को increase करते हैं with the help of some artificial method. Soil stabilization is the process of improving the engineering properties of soil and making it more stable. It is required when the soil available for construction is not suitable for the appropriate purpose. Okay, सो इंट्रोडक्शन में आप कुछ पॉइंट्स को और इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको लंबा लिखना होगा. Site feasibility study of geotechnical projects is of far most beneficial before a project can take off. Site survey usually takes place before the design process begins in order to understand the characteristics of subsoil upon which the decision on location of project can be made. Means आप उस साइट पे जहां पे आपका प्रोजेक्ट आपको बनाना है, डिजाइन करना है, वहां का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप उस जगह का सर्वे करते हैं. In that pre-construction portion, you have to do the test of soil first. And if you are gaining that strength is not appropriate, you will do something for making the soil stable. So this process includes soil stabilization. Okay. So the following, whatever the points I am highlighting here, you can write those only, not the whole. Okay, because this is also having um, uh, long portion, so you can write only this portion which I am highlighting right now. So the following geotechnical design criteria have to be considered during site selection. किस किन points को हमें ध्यान रखना होता है site selection के लिए? Before starting any project, before starting any you can say work on the site. Okay, so first point you should keep in your mind, design load and function of the structure. आप पहले ये देखेंगे कि वो साइट पे आप क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसका लोड कितना आएगा और स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा. एंड जो भी अवेलेबल सॉइल है, whether that can carry that particular type of load or not. Okay, second point, types of foundation to be used. उस लोड के अकॉर्डिंग फाउंडेशन किस टाइप की आएगी, क्योंकि फाउंडेशन हमें क्या देनी है टोटली आपके लोड पे डिपेंड करता है. अब जो आप फाउंडेशन बनाएंगे वो अवेलेबल सबग्रेड पे बनाएंगे, उस सबग्रेड कितनी स्ट्रेंथ है या नहीं कि वो उस फाउंडेशन को कैरी करे या जो अपकमिंग लोड है उसको कैरी करे.
That is why you are doing soil stabilization. And third point is bearing capacity of subsoil. The same thing, you have to find out the strength, the bearing capacity. तो इन बियरिंग कैपेसिटी और सॉइल की स्ट्रेंथ को निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं लैब में जिन्हें हम करते हैं. वन मोर मेथड you should know about CBR test. That is very common test for finding the strength of soil. Okay, so these 3 points you may write on your notebook. Okay, this is the introduction part of soil stabilization. Now, as we discuss about the types are very important. I repeat so many times that these are definitely will come in your exams of 20 to 15 marks. Okay, so you have to describe types. First is your mechanical stabilization. Second is your chemical stabilization. Third is your bituminous stabilization, lime stabilization, and these are the types of stabilization. So first, if we are talking about mechanical stabilization, as we discussed that mechanical stabilization क्या होता है, जिसमें आप उस physical process के through soil का texture change करते हैं या उसका gradation को change करते हैं. Gradation का मतलब है soil का आप texture change कर रहे हैं. Suppose the soil having coarse grain material, okay, बड़ी बड़ी soil है, gravel soil available है क्योंकि वो तो naturally available होती है. You can make that soil turn into fine material by doing some artificial methods, like you can break that soil, you can use rollers over that surface, and anyhow you can convert it from coarse grain to fine grain. So that procedure is known as the mechanical stabilization. So you can write out the definition. Mechanical stabilization is the process of improving the properties of soil by changing its gradation, okay, or texture. Two or more types of natural soil are mixed together to form a composite material. कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि कोई soil available है, suppose soil कोई एक जैसी तो होती नहीं है, soil कैसी भी हो सकती है, उसमें कैसा भी material, कोई organic, inorganic, कुछ भी available है. आप क्या कर सकते हैं, if you have time, then you can transport some other soil from other place and replace that soil also. या दो soil को mix कर सकते हैं आप, अगर वो strength अच्छी दे रही है तो you can use that surface also. So आप 2-3 soil को mix करके उसकी strength को test करिए, अगर वो appropriate strength है उस load को carry करने के लिए, then you can do this procedure also. These all steps comes under मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन. मैं जो जो पॉइंट्स बोल रही हूँ आप उसको बोलने वाले पॉइंट्स को भी लिख लीजिए, एंड रिमेनिंग आर मेंशन्ड इन दिस पीडीएफ. ओके, so this is mechanical stabilization. Now we come around chemical stabilization. So what is chemical stabilization? I already told you, जिसमें आप सीमेंट्री मटेरियल का यूज करते हैं और सॉइल को सीमेंट के साथ मिक्स करके कॉम्पैक्शन करके एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल को आप बनाते हैं. इसमें साफ साफ ये पॉइंट मेंशन है, ये आपको हाईलाइटेड करना है अपने नोटबुक में. सीमेंटिशियस मटेरियल, सीमेंट से रिलेटेड कोई भी मटेरियल हो. सीमेंट से रिलेटेड मटेरियल का मतलब सिर्फ सीमेंट नहीं होता है, आप फ्लाई ऐश का यूज कर सकते हैं, आप सीमेंट प्लस सैंड को भी मिक्स कर सकते हैं. वो आपका डिपेंड करता है कि आप क्या मिला रहे हैं और फिर उसको टेस्ट करके आप देखेंगे. ओके, यू कैन यूज पोजोलैनिक मटेरियल्स आल्सो. ओके, टू अचीव डिजायर्ड इफेक्ट. यहां तक आप लिख लीजिए. So this is process is known as the cement stabilization. सीमेंट का हम यूज क्यों करते हैं, जिससे कि आपको 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से ही आप 2 पॉइंट को हाईलाइट, नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको हाईलाइटेड कर दूंगी, आप इसको यहां तक नोट कर लीजिए.
the stabilized soil material have a higher strength and lower permeability and lower compressibility. बस एक पॉइंट याद रखिए कि आप मटेरियल जो सबग्रेड जिसके ऊपर आपको फाउंडेशन बनानी है उसको आप इस तरीके से स्ट्रेंथ देने की कोशिश करेंगे कि वहां के मटेरियल की परमेबिलिटी कम हो एंड कंप्रेसिबिलिटी भी उसकी मतलब कंप्रेस प्रॉपर हो, लोड को प्रॉपर कैरी करे लेकिन पानी को उसमें से पास ना होने दे. ठीक है. फाइन मटेरियल क्या होता है, उसकी परमेबिलिटी क्या होती है, कम होती है. सो वी विल यूज सम फाइन मटेरियल्स फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन प्रोसेस. ओके. अब आप कंपोनेंट्स ऑफ स्टेबलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है. यू मे राइट द कंपोनेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन. अब कंपोनेंट में क्या क्या आ जाता है, एक तो बाइंडिंग मटेरियल आ जाता है. ठीक है. बाइंडिंग मटेरियल improve the geotechnical properties such as compressibility, strength, permeability and durability. वही चीज होगी जो मैंने अभी जैसे आपको बोला, बाइंडिंग मटेरियल या जो इनको हम लोग स्टेबलाइजिंग एजेंट्स भी बोलते हैं, जैसे सीमेंट हो गया या कुछ अदर टाइप की सॉइल होगी जो आप किसी दूसरे प्लेस से वहां डाल रहे हैं. ठीक. ओके. सो दीज आर द कंपोनेंट्स. फर्स्ट इसमें है सॉइल. सॉइल से मतलब है कि आप वहां पे सिल्टी या क्लेई, पीट या ऑर्गेनिक सॉइल का यूज कर सकते हैं. मतलब आप इस सॉइल को कहीं से ट्रांसपोर्ट करके वहां पे ला सकते हैं और फिर उसकी स्ट्रेंथ अगर बढ़ रही है कॉम्पैक्शन करने के बाद देन इट इज ओके. अदरवाइज यू हैव टू डू सम मोर steps. Okay. And some stabilizing agents are cement, lime and fly ash. इसको आप एड अप करेंगे और फिर उसको कुछ समय के लिए सॉइल को छोड़ेंगे, फिर आप कॉम्पैक्शन करेंगे. कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, जिससे कि सॉइल के जो वॉइड्स में एयर है वो बाहर निकल जाए और उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए, डेंसिटी बढ़ जाए और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए. ओके. सो यू मे राइट these three components. Cement, it is a binding agent since in the invention of soil stabilization technology in 1960. Okay. हम सीमेंट का यूज क्यों करते हैं, बिकॉज सीमेंट की जो हाइड्रेशन प्रोसेस उसमें होता है, जो रिएक्शन होती है उससे हमारा सीमेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टी उसमें होती है और वो सॉइल को स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ड करता है. ओके. आप लाइम का भी यूज कर सकते हैं. आप जब सीमेंट को मिक्स कर रहे होते हैं तब आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना होता है कि वाटर सीमेंट रेशियो एप्रोप्रिएट हो. ठीक है. इसके अलावा यू कैन यूज लाइम मटेरियल ऑल्सो. देखिए, लाइम मॉडिफाइड डिस्क्राइब्स एन इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ब्रॉट बाय cation exchange capacity rather than cementing effect brought by pozzolanic reaction. तो लाइम का यूज भी बहुत इफेक्टिव है. अगर आप लाइम का यूज करके स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं देन यू कैन यूज लाइम. ओके. लाइम का यूज करके क्या होता है कि जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज कंपैरेटिवली बढ़ जाता है और जो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं वो बाहर आ जाती हैं. उसके थ्रू एक प्रॉपर इंटरलॉकिंग प्रोसेस होता है और वो एक कंबाइंड स्टेबल मटेरियल फॉर्म हो जाता है. तो आप लाइम का यूज भी एज अ सॉइल स्टेबलाइजर एजेंट की तरह कर सकते हैं. इसके अलावा यू कैन यूज फ्लाई ऐश. Okay, fly ash is a byproduct of coal-fired electric powder generation factories. जो fly ash होता है वो क्या होता है, it is a byproduct of coal. It having little cementitious properties compared to lime and cement. लेकिन आप इसका भी यूज करते हैं क्योंकि इसमें भी binding properties होती है. So it is also behave like a stabilizer and binding material. So you can use
fly ash if you are not using lime and cement. Okay, so हम लोग पोजो लेंस का भी यूज कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाइंडिंग, सॉरी, स्टेबलाइजर्स. This is having some aluminous and siliceous material. So ये itself एक सीमेंट्री मटेरियल की तरह एक्ट करता है, और आपकी सॉइल में अगर आप इसको ऐड करते हैं एक मॉइस्चर की प्रेजेंट में, तो ये उसको हार्ड कर देता है और उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है. तो ये प्रोसेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ऐड कर दिया. वी हैव टू ऐड इट इन एन एप्रोप्रिएट अमाउंट, कि आपको कितनी सॉइल में कितना मिलाना है. दैट इज द अदर पॉइंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाई सीइंग द साइट ओनली. एंड आप उसमें वाटर सीमेंट रेशियो या पानी कितना मिलाएंगे, सारे प्रोसेस उससे डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल स्टेबलाइजेशन. तो इसमें कुछ स्टेबलाइजर्स पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिए. एंड इसके बाद क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है. कॉम्पैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. देयर इज अ टू इंपॉर्टेंट टर्म कॉल्ड कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन. व्हाट इज कॉम्पैक्शन? Compaction is a process in which we will reduce the volume of soil by doing some method, जिसमें हम एयर को बाहर निकालते हैं, और कंसोलिडेशन जिसमें हम वॉइड्स के थ्रू वाटर को बाहर निकालते हैं. तो वी कैन यूज सम रोलर्स और some heavy machines, जिसके थ्रू हम इम्पैक्ट लोड देते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट से कंटिन्यूअस लोड देते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, और सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं. ठीक है, तो आजकल जो मेथड होते हैं वो रोलर्स वगैरह की हेल्प से करते हैं. टेम्पलिंग वगैरह या जो लेबर जिससे पहले करती थी कि 1 या 2 महीने प्रोसीजर को किया जाता है, उसको अब नहीं किया जाता है. ओके, नाउ स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के भी हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट है इन सीटू स्टेबलाइजेशन. एंड इन सीटू का मतलब होता है साइट पे जो काम डायरेक्टली हो रहा है. ठीक है, द मेथड इन्वॉल्व ऑन साइट सॉइल इंप्रूवमेंट बाय अप्लाइंग स्टेबलाइजिंग एजेंट विदाउट रिमूविंग द बल्क सॉइल. मतलब ये है कि आपने सॉइल को रिमूव नहीं किया और आपने सॉइल स्टेबलाइजेशन प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दिया. This technology offer benefit of improving soil for deep foundation. Deep foundation के लिए ये suitable होता है. Shallow foundation and contaminated sites. Okay. Planning of design makes involve the selection and assessment of engineering properties of stabilized soil and improve the ground. इसके बाद हमें ये देखना होता है कि आपने स्टेबलाइजिंग कर दी, फिर आप इसको लैब में टेस्ट करेंगे सॉइल को, फिर अगेन आप उस प्रोसीजर को देखते हैं. जहां पे डीप फाउंडेशन आपको डालनी होती है, वहां पे इन प्रोसेस को आप ऑन द साइड ही करते हैं. ठीक है, इसके बाद ये इसके भी हमने 2 क्लासिफिकेशन किए हैं आपके इन सीटू स्टेबलाइजेशन के. फर्स्ट है डीप मिक्सिंग मेथड एंड सेकंड इज योर वेट मिक्सिंग मेथड. डीप मिक्सिंग मेथड में क्या आता है? इन डीप मिक्सिंग मेथड इन्वॉल्व द स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल एट लार्ज डेप्थ. It is an in situ ground modification technology in which a wet or dry binder is injected to the ground and blended with in situ soft soil. आप इसको ये समझिए कि आपने देख लिया कि वहां की सॉइल कैसी है, फिर आप डीप मिक्सिंग में क्या करते हैं कि सपोज आपने देखा कि ग्राउंड में कोई फॉल्ट है या कोई क्रैक है, तो यू विल मेड अ स्लरी मटेरियल एंड फिल इन दैट क्रैक. ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम, like the grouting process, it will just fill up and gaining its strength. So it is also a method. So deep mixing method includes all these parts. It is for larger depth. You may write this. Now second is wet mixing method. जैसे मैंने बताया कि इसमें हम वेट मिक्सिंग में भी स्लरी को फॉर्म करते हैं, डीप मिक्सिंग में भी आप कर सकते हैं अगर कोई फॉल्ट है, और वेट में तो आप करते ही हैं. एप्लीकेशन ऑफ वेट डीप मिक्सिंग इन्वॉल्व बाइंडर turned into slurry form, which is
then injected into the soil through the nozzle located at the end of the soil auger. ठीक है, तो ये वेट मिक्सिंग आता है कि आपने देखा कि ग्राउंड में इतनी डेप्थ तक आपको फाउंडेशन डालनी है और वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस स्लरी को या ग्राउटिंग प्रोसेस के थ्रू उसको रिकवर करते हैं. So these are the figures of the site of okay. So this is all about the soil stabilization. It is much more enough. I already made 2 lectures about this. Now the topic is, that is also very important, dynamic compaction. So what is dynamic compaction and what are the advantages, purposes and use? These topics are correlated to each other. That is why I am taking simultaneously of all. Okay. So what is dynamic compaction? Dynamic, I wrote the definition. Dynamic compaction is a method that is used to increase the density of soil when the certain subsurface constraints make other method inappropriate. Dynamic compaction भी उसी तरीके से होता है कि आप सॉइल की आपको डेंसिटी को आपको उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉइल. और जब कुछ और मेथड इनएप्रोप्रिएट होते हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में, इट इज अ मेथड दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉइल डिपॉजिट. डेंसिटी कैसे बढ़ेगी? अगर आप वॉल्यूम को रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि रो क्या होता है? रो इज इक्वल्स टू m अपॉन v. इफ v इज लेस, रो इज मोर. सो दैट इज आल्सो अ प्रोसेस जिसमें आप वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं और डेंसिटी को बढ़ाते हैं. तो डायनेमिक कॉम्पैक्शन में हम क्या करते हैं कि एक मशीनरी हैवी लोड को एक इम्पैक्ट लोड को एक पर्टिकुलर हाइट से आप उस सॉइल पे, आप ब्लॉक देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर हाइट से उस पर्टिकुलर जगह नंबर ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर इंटरवल में लगातार उस जगह पे आप पटकते हैं. एक तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में बोलें तो आप लोड को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्टेन इम्पैक्ट करते हैं. तो उस छोटे से एरिया के लिए अगर आप करें तो इस डायनेमिक प्रोसेस इज very effective. So you can do this process also for increasing the density of soil and ultimately the strength of soil. So but today I just discuss about what is dynamic compaction only. Later on I will take more topic about this dynamic compaction. So you can write some other point also. Dynamic compaction is an efficient and cost-effective soil improvement technique that uses the dynamic effect of high energy impacts to densify weak soil. ये भी तभी किया जाता है जब आप साइड पे देखते हैं कि भाई ये जो soil है that is weak or not having appropriate strength, then you can use dynamic compaction process. Dynamic compaction process will take long time as compared to some other methods. सो क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर साइड पे एक एक पॉइंट पे इम्पैक्टिंग लोग देके उस साइड की सॉइल को कॉम्पैक्ट करना होता है, तो इस तरीके से टाइम जो होता है वो ज्यादा कंज्यूम होता है. सो वी विल यूज दिस मेथड एज कंपेयर टू लेस एज कंपेयर टू द अदर मेथड्स. You may write these points also. Dynamic compaction is used to improve the weak soil, such as loosened medium to coarse-grained sand with salt or clay content. It is effectively enhance the soil to deep of 10 meter. Okay, but its influence reach till 12 meter depth. But this method is not appropriate for higher depth. Maximum 12 15 meter. 15 is also more, 12 to 13 meter. Okay, not only does it utilize for settlement improvement and liquefaction mitigation, but also for improvement of long term performance and backfilling landfill sites and collapsing cavities. Okay, तो आप इस मेथड के थ्रू भी अप टू 13 या 14 मीटर जो भी आपको वेट फिलिंग करनी है, आपने कोई एक्सकेवेशन किया इसके बाद आप वेट फिलिंग कर रहे हैं, सेटलमेंट करनी है सॉइल का, या फिर आप किसी कोलैप्सिंग एक्टिविटी को रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डायनेमिक कॉम्पैक्शन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डायनेमिक कॉम्पैक्शन प्रोसेस. आई विल टेक
from this point only in my next lecture. So thank you very much. If you have any doubt, then you can contact me anytime.